Hello everyone. I welcome you all once again in today's video. Today I am going to explain you one of the best chapter from class 10 First Flight book से and the name of the chapter is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom और इसको लिखने वाले उस ऑथर का नाम है नेल्सन रोहिलाला मंडेला ये एक ऑटोबायोग्राफी and it was written by Nelson Mandela himself. So, before proceeding to ahead, just I want to give a short description about the following chapter. Afati is a political system that separates people according to their race. अफाती एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को सेपरेट करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस कलर एंड क्रीड. Can you say which of the three countries named below and such political system until very recently? यहाँ पे बता रहा है कुछ कंट्रीज के नेम. इसमें पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड है साउथ अफ्रीका एंड थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया. इन तीनों ही कंट्रीज में अभी भी अफाती नाम की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अभी भी प्रिवेल है. Have you heard of Nelson Mandela? Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against Afati. क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है सेकेंड गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका बिकॉज नेल्सन मंडेला himself and his party they fought against the political Afati system for more than 30 years and they spent in jail also. So that's why Nelson Mandela and his party they fought against for their lifetime also. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Nelson Mandela became the first black president of new nation. जब पहली बार अफ्रीका की कंट्री में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को हेल्ड किया गया इन द ईयर ऑफ 10th May 1994 में and in that election Nelson Mandela became the first black president of new nation. In this extract from this autobiography A Long Walk to Freedom, Nelson Mandela speak about the historic occasion, the inauguration. जो ऑटोबायोग्राफी हम आज पढ़ने जा रहे हैं ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें नेल्सन मंडेला उस हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में बता रहे हैं, उस इनॉग्रेशन इवेंट के बारे में. आप समझोगे कि ये इनॉग्रेशन है क्या. सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड बाय इनॉग्रेशन दैट मीन्स ए इंडिपेंडेंट डे and it was took place in the 10th May 1994. This is the inauguration of South Africa. In that day they got freedom after the white supremacy. So this is the short description that I have explained and now we have to understand a little bit about Nelson Mandela and his party. Nelson Mandela has become the South African first black president after more than 3 centuries of white rule. That means यहाँ पे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, वो भी आफ्टर 3 centuries के बाद, आफ्टर ए व्हाइट सुप्रीमेसी के बाद. लगभग अफ्रीका में 3 centuries तक वहां पे रूल था व्हाइट सुप्रीमेसी का. He became the first black president of newly formed government.
Mr. Nelson Mandela, African National Congress ANC party, won the 252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa African history. नेल्सन मंडेला एंड उसकी जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो लगभग उस इलेक्शन में 400 सीट्स में से लगभग 250 सीट को उसने अचीव किया था और ये एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। इतनी यदि हाई मेजोरिटी उन्होंने उस पार्टी को उन्होंने वोन किया था। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from the more than 140 countries around the world. जो इनाग्रेशन सेरेमनी को वहां पे कंडक्ट किया गया, हेल्ड किया गया इन यूनियन बिल्डिंग अम्फी थिएटर में इन प्रिटोरिया में, और उस इनाग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए लगभग दुनिया भर के 140 कंट्रीज के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जितने भी डिग्निटीज थे दुनिया भर के, वो सब के सब वहां पे असेंबल हुए थे उस इनाग्रेशन को विटनेस होने के लिए। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of the one by another, said Nelson Mandela in his address. तो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो स्पोक किया गया जो लाइन थी, उन्होंने कहा कि ये जो ब्यूटीफुल जो लैंड, जो ब्यूटीफुल जो आप सोइल देख रहे हो, कंट्री देख रहे हो अफ्रीका में, it will never and never again oppressed and experienced by the human dignity. And this statement was spoken by Nelson Mandela on the podium on the day of 10th May 1994, word in front of world leaders and politicians. Jubilant senses on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white, and color celebrating together. More than 1 crore South African men, women, and children, all the races sang and danced with joy. जो इनाग्रेशन सेरेमनी वहां के स्ट्रीट में फॉलो किया गया इन प्रिटोरिया में, लगभग उस सेरेमनी में जितने भी जो व्हाइट लोग थे, इंक्लूडिंग ब्लैक, वो सब के सब साथ में मिलकर गेट टुगेदर होकर लगभग जितने भी साउथ अफ्रीकन लगभग 1 करोड़ के लगभग जितने भी थे, उन सभी लोगों ने इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, व्हाइट एंड ब्लैक, वो साथ में आकर डांस एंड सिंगिंग कर रहे थे, बिकॉज दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी आफ्टर 3 century. So this is the short description that I have explained, and now I'm going to explain you land by land explanation about the following text. 10th May dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. यहाँ पे डेट बता रहा है कि 10th मई का जो दिन था, अर्ली इन द मॉर्निंग का, बहुत ही ब्राइट एंड बहुत ही क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. उन्होंने यहाँ पे अपने एड्रेस में बताया कि जो 10th मई का जो दिन था बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही ब्राइट था। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग कुछ दिनों पहले आई वॉज प्लेसेंटली बिसिजेड बाय, बिसिजेड का मतलब होता है सराउंडेड बाय, या वी कैन से क्लोजली assemble in the world leaders and dignitaries and the whole world of the countries, because they came to respect before inauguration. So that's why he addressed in this. The inauguration would be the largest gathering ever on the international
लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इवेंट, जो इनाग्रेशन वहां पे हेल्ड किया गया, अब तक का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग माना जाता है। बिकॉज उस इवेंट में दुनिया भर के जितने भी जो वर्ल्ड लीडर्स थे, 140 कंट्रीज के, वो सभी जितने भी डिग्निटीज थे, वहाँ के लोग वहाँ पे विटनेस होने के लिए गए हुए थे। बिकॉज आफ्टर 3 centuries अफ्रीकन पीपल गोट द इंडिपेंडेंट, सो दैट्स वाई वो सब के सब वहाँ पे गैदर हुए थे उस इनाग्रेशन को विटनेस होने के लिए। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. जो सेरेमनीज वहां पे कंडक्ट किया गया वो बनी हुई थी लवली सैंडस्टोन की। एक अम्फीथिएटर एक ओपन स्पेस होता है, वहां पे कंडक्ट किया गया, वो भी यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। फॉर डेकेड this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different color and nation for the installation of South African first democratic and non-racial government। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि फॉर डेकेड्स तक, ओके, जो गवर्नमेंट आप जो देख रहे थे वो व्हाइट सुप्रीमेसी के अंडर में रूल थी, लेकिन नाउ एक रेनबो के रूप में डिफरेंट डिफरेंट कलर के जितने भी थे, एक ऐसी गवर्नमेंट को उन्होंने इंस्टॉल किया है। वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी जाति, रंग, रूप, कलर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। एक ऐसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट को उन्होंने इंस्टॉल किया था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी। उन्होंने कहा कि जो 10th मई का जो दिन था बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था, और उस ऑटम डे में आई वॉज अकम्पनी टू अटेंड द इनाग्रेशन सेरेमनी विथ माई डॉटर जिनानी। You have to remember the name of daughter of Nelson Mandela. On the podium, Mr. De Klerk was sworn the first second deputy president. On the stage on the podium में मिस्टर डी क्लर्क थे, उसने अपने आप में स्वर्ण किया एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। You can see the picture of Nelson Mandela that I have mentioned here. He fought against lifetime and he spent 30 years in jail also. Then Thabo Mukebi was sworn as the first डिप्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि पहले डी क्लर्क ने उसे सेकंड डिप्टी के रूप में उसने अपने आप को स्वर्ण किया। देन लेटर जो थाम्बो मुकेबी था, उसने आपको अपने आप को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपने आप को शपथ ग्रहण करता है। जब उसका टर्न आया, नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, तो उन्होंने कहा कि पहले तो डी क्लर्क ने शपथ ग्रहण की एज सेकंड डिप्टी रूप में। देन सेकंड जो था थाम्बो मुकेबी, उसने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उसने आपको स्वर्ण किया। जब खुद का टर्न आया तो उसने कहा, आई प्लेज्ड टू obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of republic and people। जब नेल्सन मंडेला का टर्न आया तो नेल्सन मंडेला ने अपने आप में प्रतिज्ञा किया उसने कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने जितने भी जो वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक है उन सभी लोगों का मैं अपने आप को डिवोट करूंगा। आई विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीकन पीपल्स। To the assembled guest and the watching world I said, तो नरसिंह मंडला
उन वर्ल्ड दुनिया भर के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, डिग्निटीज थे, उन सभी लोगों को विटनेस होते हुए अपनी आंखों से देखा उन्होंने। देन ही सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। उन्होंने कहा कि आज जो आजादी आप देख रहे हो इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, आज हम सभी लोग इस न्यूली बोर्न लिबर्टी के विटनेस हुए हैं। All of us of the experience the extraordinary human disaster that lasted too long must be born in society of which all human will be proud। उन्होंने कहा कि जो न्यूली बोर्न लिबर्टी हमें आज अचीव हुई है, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा ह्यूमन डिसास्टर को फेस करने के बाद हमें आज मिली है। यहाँ पे जितने भी जो वर्ल्ड लीडर्स है दुनिया भर के अफ्रीकन, वो सब की सब वो अपने आप में प्राउड फील कर रहे होंगे, बिकॉज देयर डिग्निटीज, उनकी जो आत्मसम्मान है उनको आज उनको अपने आप में प्राउड हुई है, उनको देखने का आज मौका मिला है, ये न्यूली बोर्न लिबर्टी। इस आज़ादी को देखने के लिए दुनिया भर के जो लीडर्स थे, उनके साथ जो कंपानियन थे, जितने भी जो पेट्रियोटिज्म थे, उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर बीइंग फॉर दिस ओकेशंस, ऑस्पिशियस मोमेंट के लिए। लेकिन वो इस दुनिया में अभी नहीं है। उन सभी लोगों का भी नेल्सन मंडेला अपने उस एड्रेस में नाम मेंशन करता है। We who were outlawed not so long ago today had been given the rare privilege to the host to the nation of world on our own soil। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें कुछ सालों पहले या कुछ डेकेड्स पहले हमें आउट लो मानते थे, आउट लॉस मानते थे या आउटकास्ट मानते थे, आज वही लोग हमें एक रेयर प्रिविलेज दे रहे हैं अपनी खुद की धरती पे होस्ट करने का, अपनी खुद की जमीन, अपनी खुद की मिट्टी पे। We thank you, all of us, our dignitaries and international guests, for having to come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory. Victory for justice, victory for peace, and victory for human dignities। उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन सभी डिग्निटीज या डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल लीडर्स को जो उन्होंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और इस कंट्री के न्यूली बोर्न लिबर्टी को विटनेस हुए हैं। आफ्टर ऑल दिस इज अ कॉमन विक्ट्री, ए विक्ट्री फॉर जस्टिस, ए विक्ट्री फॉर पीस एंड विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटीज। ही confer the glory of in the large gathering। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है इस पॉलिटिकल इमांसिपेशन में। दैट मीन्स हमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन को हमको फॉलो करना होता था, कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन आज हमें ये इस बॉन्डेज को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, बिकॉज हम इस कंटिन्यूसली बॉन्डेज को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि आज जो आज़ादी, आज हमें जो पॉवर्टी हमने फेस किया था, ऐसे बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रावेशन, सफरिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इन कॉमन लोगों में, उन सभी ब्लैक लोगों को जिनको आगे बढ़ने का कोई भी चांसेस नहीं मिलता था। कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, इंक्लूडिंग डिप्रेवेशन एंड सफरिंग एंड सम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। Never, never, and never again shall it that this beautiful land will again experience the oppression of the by another। उन नरसिंह मल्ल ने अपने एड्रेस में कहा कि जो आप ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल सोल आज देख रहे हो, जो ब्यूटीफुल अचीवमेंट को आप देख रहे हो न्यूली बोर्न लिबर्टी को,
इस ब्यूटीफुल सोल को कभी नहीं और कभी नहीं किसी और लोगों के थ्रू ऑप्रेस किया जाएगा। The sun shall never set on the glorious on human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो जो अचीवमेंट उन्होंने अचीव किया था आफ्टर 3 सेंचुरीज के बाद, व्हाइट सुप्रीमेसी रूल करने के बाद, उस दिन का जो डे था, जो सन था 10 मई 1994 का, बहुत ही ग्लोरियस साइन हो रहा था बिकॉज ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट पे। इतना बोलने के बाद नेल्सन मंडेला ही सेड ही ब्लेस द गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रेन। So students, this is the first part that I have explained, and now I'm going to end this session here right now. I will explain second part as soon as possible on the next video.